Hello, my dear student. Very precious good morning to all of you. Welcome to Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Myself, Dr. Sanjay Singh, Subras Children Academy, Argurpur Kalan, Jaunpur. I told you detail in previous lectures the type of photosynthetic pigments and what is the important role in a specific physiological process that is known as photosynthesis. Today, now we are going to discuss what is the important role of the photosynthetic pigments inside the plants in photosynthesis process. So first pigment is known as chlorophyll A. Chlorophyll A. I told you about the chlorophyll A in previous lectures. The chlorophyll A is the main pigments और इसी को हम बोल सकते हैं essential pigments. Why it is called an essential pigment? Because ये क्यों इसको ऐसा करता है? They convert light energy into chemical energy. So therefore the chlorophyll A is also known as a reaction center of photosystem. अभी हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज द फोटोसिस्टम, वहाँ पर हम बात करेंगे. दिस इज द मेन रिएक्शन सेंटर. द लाइट रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ए. आफ्टर दैट लाइट एनर्जी converted into chemical energy. And here is the one simple diagrams are mentioned in here. Here is the chlorophyll A. Here is the electrons. Here the light passes on here. Here is the light fall on the leaves. Before fall of the leaves, the chlorophyll A become ground states. After that, they are excited. It is the excited states of the chlorophyll. Here is the excited state. After that, the chlorophyll A become ionized. Plus charge. And then emitted electrons. That is known as ionized form of chlorophyll. Here is the figure is the photo excitation of chlorophyll A. Chlorophyll A. Chlorophyll A molecules cannot remains in this stage more than 10 to the power minus 9 second. So the electron transfer, so photochemicals आप भी कह सकते हो, that is known as photochemical reaction are very fast
वेरी फास्ट, आप इसी को दूसरा नाम से सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वेरी फास्ट, बहुत तेज़ होता है। इसको आपको समझने का है। मैंने क्या बोला कि क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट, दिस इज द एसेंशियल पिगमेंट, इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शन सेंटर बिकॉज द लाइट रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ए because it's having a ability that convert light energy into chemical energy. Here is the simple diagrams or photo excitation of chlorophyll A. जब रात होता है ड्यूरिंग नाइट्स, ऑल द पिगमेंट्स, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वह किस में चले जाते हैं? इन द ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द क्लोरोफिल ए। व्हेन द लाइट्स फॉल ऑन द लीफ ड्यूरिंग डे, जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है द क्लोरोफिल ए बिकम एक्साइटेड, और एक्साइटेड होगा फॉर इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को वो इमिट करने के लिए वह एक्साइटेड हो जाएगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, वह ट्रांसफ़र कर देता है, देयरफॉर द क्लोरोफिल ए बिकम आयनाइज इन प्लस चार्ज। हमने इस बात को यहाँ पर दिया कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैन नॉट रिमेन इन दिस स्टेज मोर देन 9 सेकेंड। सोचो -9 सेकेंड, बहुत ही कम समय के लिए ये इस स्टेज में रहता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। देन स्टार्ट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आफ्टर दैट केमिकल एनर्जी आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हियर इज द सिंपल डायग्राम ऑफ द फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल। एक्साइट होती है तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा देन स्टार्ट लाइट रिएक्शन ऑफ photosynthesis, light reaction of photosynthesis, photosynthesis। तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, दिस इज द सेकेंड, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल बी and carotenoids, chlorophyll B and carotenoids means they absorb light energy of different wavelength of visible spectrum having 7 different color। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वली द विजिबल स्पेक्ट्रम प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट transfer to chlorophyll A by resonance। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड इज ए टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। तो व्हाट इज द रोल? इनका रोल क्या होता है? दे ट्रैप, दे एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, आफ्टर दैट जो 7 कलर उसको एब्जॉर्ब करेगा एंड लाइट्स, एंड दीज लाइट्स जो होते हैं एंड लाइट्स ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए बाय रेजोनेंस के थ्रू। जैसे आपको जाता है, आपको साउंड रेजोनेंस के थ्रू आगे बढ़ जाता है, इसी तरह से लाइट और ट्रांसफर फ्रॉम क्लोरोफिल बी एज वेल एज कैरोटेनॉइड्स टू मेन रिएक्शन सेंटर दैट इज नोन एज क्लोरोफिल ए। वाई, क्यों वहाँ पर ट्रांसफर हुआ? मैंने पहले भी बताया कि बिकॉज द क्लोरोफिल ए हैव ए कैपेसिटी, हैव ए पावर convert light energy into chemical energy. Therefore, the chlorophyll B and carotenoids is also known as accessory pigment। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे उसके उसमें सहायक है। accessory pigments are LHC complex, accessory pigments और LHC क्या हो गया? लाइट हार्वेस्टिंग
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। LHC कॉम्प्लेक्स composed of, this is the more than 100 types of pigments plus associated with protein, associated with protein। और इससे हेल्प क्या होगा? Due to these pigments, to make photosynthesis more efficient, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द एसेसरी पिगमेंट्स आर LHC कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। ड्यू टू दिस टू मेक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज मोर इफिशियंट, उसको ज़्यादा बना देगा। एंड द रेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, आप कह सकते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर, एज वेल एज maximum products are formed by the plant by the process of photosynthesis। ठीक है। as well as carotenoids protect chlorophyll A from ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाने में भी हेल्प करता है। फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज मीन्स क्या हुआ? ड्यू टू हाई वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स इज मोर अबव, इसके अबव द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो क्या होता है? दे आर डायरेक्टली अफेक्ट ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देयरफॉर क्लोरोफिल ए बिकम डैमेज्ड। वो हो सकता है तो डैमेज हो जाएगा, तो लाइट एनर्जी नेवर कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसलिए ये जो कैरोटेनॉइड्स इज ऑल्सो प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। नेक्स्ट इज हियर इज द टू बेसिकली 3, मैंने पहले भी बोला था कि only 2 type of photosynthetic pigments found in the plant, one is the chlorophyll, another is the carotenoids। Next is photosystem, and what is the role mentioned detail in here, and next is photosystem। Photosystem is also known as pigment system। बच्चों ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पर सिस्टम की बात आती है वहाँ पर एक ही नहीं होगा, वहाँ पर कई लोग मिल जाते हैं, एक साथ एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम मीन्स इन दिस सिस्टम कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट they are aggregate with each other to form a system, and this system is known as photosystem or pigment system। अब ये बात आती है कि इनसाइड अगर हम बात करें, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट? इज ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स होता है। कलरफुल रीजन्स आर प्रेजेंट, कलरफुल रीजन्स प्रेजेंट्स, वहाँ पर प्रेजेंट्स होती हैं। एंड दिस कलरफुल रीजन इज नोन एज ग्रेना, उसको क्या बोलते हैं? कलरफुल रीजन इज नोन एज ग्रेना। एंड द ग्रेना इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थाइलाक्वाइड्स। ये चीज़ हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की जब बात मैंने बताया था,
तो एक सिंपल सा वहाँ से मैंने आपको ये बताया था, हियर इज द वेरी रफ डायग्राम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट आपको फ्रेट लैमरी मीन्स यहाँ पर ऐसा आपको स्ट्रक्चर्स हमने दिखाया था कि ये क्वाइंस के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये ईच रिप्रेजेंट थाइलाक्वाइड्स, और एक को हम क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड्स। और ऐसे जब मेनी मिल जाते हैं, दे आर एग्रीगेट विथ ईच अदर्स, ऐसा बनेंगे, दैट इज नोन एज ग्रेनम। उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ ग्रेनम इनसाइड द, मैंने बोला भी था, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट नियर अबाउट 40 to 60 इन नंबर्स। ऐसे आपको 40 से 60 के बीच में इनके नंबर्स होते हैं। दिस इज द कलरफुल रीजन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थाइलाक्वाइड एंड ईच थाइलाक्वाइड्स, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात मैं बता रहा हूँ। ईच थाइलाक्वाइड्स contains various types of photosynthetic pigments, pigments on the surface of the membrane, on the surface of membrane at specific location or position, that is known as क्वांटाजोम, और इसी को आप बोल सकते हो फोटो सिस्टम। क्वांटाजोम्स आर फोटो सिस्टम। क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, पहले भी बोला था कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट सिस्टम। द फोटो सिस्टम्स आर पिगमेंट सिस्टम, इट कंटेन्स very large numbers of photosynthetic pigments. They are aggregate with each other to form a system, and this system is known as photosystem or pigment system. अब ये बात आती है कि जिस photosystems or pigment system wheres are present inside the plant, तो inside the leaves chloroplast are present. The chloroplast is what? Is a type of cell organelles. Inside the cell organelles, the colorful regions are found, that is known as grana. The grana is composed of, made up of many number of thylakoids, and each thylakoid contains a various type of photosynthetic pigment on the surface of the membrane, that is known as quantasomes or photosystem. Clear? तो ये आपका हो गया कि what is the photosystem क्या है। एंड फोटोसिस्टम्स, ध्यान देना कि फोटोसिस्टम की जो बात हम बता रहे हैं, फोटोसिस्टम इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लाइट रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व किसमें इन्वॉल्व होगा? इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। There are 2 types of photosystems, 2 types of photosystems presents on granum। ग्रेनम सब आप पर मिलते हैं। नंबर 1 PS1 photosystem first and PS2 photosystem second. The PS1 is also known as P700 and the PS2 is also known as P680. Photosystem, here the photosystem is made up of 2 types of pigments here, that is known as 2 types of component. That is, first component is known as a reaction center and second is known as LHC complex or accessory pigments. The reaction centers either
P70, P700, not 70, P700 और P680 होगा, दैट इज नोन एज रिएक्शन सेंटर्स। एंड द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपको होंगे क्लोरोफिल, वेरियस टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनॉइड्स टू फॉर्म LSC complex or accessory pigment। तो LSC complex or accessory pigment is also known as antenna और एंटीनी। इसको क्या नाम देते हैं? एंटीनी का नाम देते हैं, एंटीना। ये एंटीना है। एंटीना क्या करता है? रिसीव द वेरियस वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स फ्रॉम द सन, फ्रॉम द लाइट्स, ओनली रिसीव द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम प्रेजेंट ऑन द ग्रेनम, PS1 एंड PS2। द PS1 फोटो सिस्टम में तो दो चीज़ें होंगी, रिएक्शन सेंटर एंड LSC कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होगा? LSC कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर एंड LSC कॉम्प्लेक्स। द रिएक्शन सेक्टर इज व्हाट? P700। यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज 700 नैनोमीटर होगा फ्रॉम PS1 एंड LSC कॉम्प्लेक्स कंटेंस, यहाँ पर क्या हो सकते हैं? 200 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल ए प्लस फ्यू क्लोरोफिल बी प्लस 50 टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स दैट इज नोन एज P700। तो ये चीज़ याद रखना कि PS1 contains two parts. One is the reaction center, this is the main center by which light reaction start, वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड अनदर इज द LSC कॉम्प्लेक्स। मैंने पहले भी बोला कि जो फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, रिएक्शन सेंटर एज वेल एज LSC एक्सेसरी पिगमेंट। सिमिलर भी यहाँ पर भी आप देखो, एंड हियर द LSC आर कॉम्प्लेक्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स ट्रैप द वेरियस वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स एंड ऑल द लाइट प्रोवाइडिंग टू द रिएक्टिंग सेंटर। किसको देगा? रिएक्टिंग सेंटर को देगा। आफ्टर दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन देन स्टार्ट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। द P700 मैक्सिमम एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। इस चीज़ को याद रखना। सिमिलर वे उसकी बात करें इन PS2, अगर हम PS2 की बात करता हूँ तो वही बात आएगी। यहाँ पर भी दो पिगमेंट्स होंगे, केवल एक चेंजेज होगा। यहाँ पर रिएक्शन सेंटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? P680 मैक्सिमम एब्जॉर्ब कितना कर रहा है? 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर एब्जॉर्ब बाय द PS2 एंड नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड इज व्हाट? LSC कॉम्प्लेक्स और एक्सेसरी पिगमेंट। ये यहाँ पर इसका जो कंपोजिशन होगा सिमिलर टू PS1 जो हमने अभी डिस्कस किया वही सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजेज आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर भी होगा। तो LSC कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? एब्जॉर्ब द लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगी एंड ऑल द लाइट वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोवाइडेड टू क्लोरोफिल ए बाई रिजोनेंस के थ्रू उसको देता रहता है। यहाँ पर भी वो देता रहता है। तो सम स्लाइट डिफरेंसेस टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ वेवलेंथ of photosystem 1 and 2. The photosystem 1 absorb maximum 700 nanometer of wavelength and the PS2 absorb 680 nanometer of wavelength. And the PS2 की बात करें, strong oxidizing strong oxidizing agents because it contains ymium, manganese, chloride ions and calcium and
कैल्शियम। ड्यू टू दिस ये क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसको तोड़ेगा, रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, रिलीज्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। PS1 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं है, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व नहीं होगा, बट द PS2 जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिकॉज इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट आयंस आर प्रेजेंट, one is the manganese, another is the chloride, and next is the calcium ion. Due to this the PS2 are highly oxidizing or strong oxidizing agents, ये आपको बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा, देयर आर 2 टाइप ऑफ फोटो सिस्टम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेनम और सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड्स मेम्ब्रेन। एक सिंपल डायग्राम से हम आपको ये समझाऊं कि कैसे वो लाइट्स क्लोरोफिल ए तक वो पास हो रही है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम्स। आपको उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपके NCERT के बुक में भी दिया हुआ है और ऐसे भी आप समझ सकते हो। Here is the LSC complex, ये आपके LSC कॉम्प्लेक्स होते हैं। Here is the reacting center, here is the reaction center, रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर में आइदर P700 और P680 हो सकते हैं, एसेसरी कॉम्प्लेक्स आर सेम। और यहाँ से यहाँ तक ये जो होंगे LHC कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है। इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हियर इज द लाइट फॉल ऑन दिस पिगमेंट्स, जैसे ही इधर आती है हियर द फोटॉन्स और लाइट, ये फोटोन और लाइट्स जैसे ही करेगी और ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दिस लाइट्स पासेस फ्रॉम वन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू अनदर एंड टू किसको जाएंगे, रिएक्शन सेंटर बाय रेजोनेंस। कैसे थ्रू जा रहे हैं, बाय रेजोनेंस, बाय रेजोनेंस, बाय रेजोनेंस। तो ये आपने देखा, वही चीज़ मैंने कहा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ LSC। LSC का मेन रोल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैप वेरियस वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्पेशली फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम। आफ्टर दैट एंड दिस लाइट प्रोवाइडिंग टू द मेन सेंटर, मेन सेंटर वह क्या होगा, दैट इज नोन है रिएक्शन सेंटर। आइदर यहाँ पर P700 होगा और P680 होगा। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, देन स्टार्ट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद क्या होगा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब एक हम आते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन PS1 एंड PS2, क्या डिफरेंस होगा। नेक्स्ट PS1 differences between PS1 and photosystem second PS2. The PS1 and here is the PS2, PS1 and PS2. The first points, a reaction center is what, P700, यहाँ पर क्या होगा P700 और यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन सेंटर, मीन्स रिएक्शन सेंटर P680. इट मीन्स पहला डिफरेंस, द PS1 absorb maximally 700 nanometer wavelength of the light, after that emitted electrons. Similar way, the PS2 absorb maximally 680 nanometer wavelength of lights, after that emitted electron, then start light reaction of photosynthesis. Second differences, PS first located on outer surface of thylakoids membrane, thylakoids
मेम्ब्रेन, ये कहाँ पर होगा, ये बाहर की तरफ होगा, मेम्ब्रेन के बाहर के साइड होगा। बट द PS2, PS2 located inner side of thylakoids membrane, thylakoids membrane। तो आपने देखा, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन देम, they are present in the outer side and the PS2 present on the inner side. The third difference between PS1 and PS2 found in grana and stroma lamellae। देखो, और ये जो होगा फाउंड इन ग्रैनम, और इसको आप ग्रैना लैमेले। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैसे समझोगे आप। अगर मैंने जब डायग्राम आपको मेंशन किया था, तो हियर इज द सिंपल डायग्राम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो हमने ये बात बताया था कि ऐसे कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एंड ऑन दिस पाइप्स, इसी के ऊपर क्या होते हैं, थैलाकोइड्स आर अरेंज्ड होते हैं। तो दैट इज नोन एज ग्रैनम। ये क्या होता था, ग्रैनम। और इनके बीच में ऐसे आपको मेनी नंबर्स ऑफ ग्रैनम्स आर प्रेजेंट इन ईयर। तो इनके बीच का जो प्लेस होता था, स्पेस बिटवीन टू ग्रैनम्स, एक जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती थी, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इसी को हमने क्या बोला था, स्ट्रोमा लैमेली। तो ये कह रहे हैं कि PS1 ये यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी फर्स्ट होगा, और यहाँ पर भी होगा। बट द PS2 ओनली प्रेजेंट इन द ग्रैनम लैमेली। ये कहाँ पर होगा, जो इसको बना रहा है ये यहीं पर होगा। तो PS2 ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दिस साइड, बट द PS1 प्रेजेंट on granum as well as freight membranes are stroma lamellae. This is the third difference between PS1 and PS2. The fourth difference, participates in non-cyclic and cyclic photophosphorylation. phosphorylation। ध्यान देना, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। व्हाट इज द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द लाइट रिएक्शन परफॉर्म टू टाइप ऑफ पाथवे, वन इज द नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो आप देखोगे द PS1 इन्वॉल्व इन बोथ द साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बट द PS2 की अगर हम बात करते हैं, ये इन्वॉल्व इन only non-cyclic pathways, involve in only non-cyclic pathway, absent in the cyclic pathway. No photolysis of water, ये वाटर्स को ब्रेक नहीं करता है। बट द PS2 इज इन्वॉल्व फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर्स एंड देयरफॉर रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। इसको पहले भी हमने अभी डिस्कस किया कि PS2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है ड्यू टू आयंस। 3 इंपॉर्टेंट आयंस के बारे में डिस्कस किया। देयरफॉर उसके बाद क्या होगा, PS2 मैंने कहा लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो जब होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो ब्रेक कर देता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो जब भी हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो लाइट रिएक्शन में आपको क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा एंड रिलीज्ड ऑक्सीजन एज द बाई प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेप में होगा एंड सेकेंड स्टेप में CO2 का फिक्सेशन होता है। तो यहाँ पर जब भी बात आएगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड। तो हियर इज द सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन PS1 एंड PS2। तो दिस
ये जो आपका मैंने आज मैं डिस्कस किया कि रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एज वेल एज फोटो सिस्टम्स, एंड दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फोटो सिस्टम्स, जो बोथ द फोटो सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर medical point of view or NEET point of view. So these chapters are very very important for your careers. So thank you for watching this video. Have a nice day all of you.